In this module, we will continue with the glycerophospholipid. अभी तक जो हमने फॉस्फोलिपिड्स पढ़े हैं उसमें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को भी देखा है, लेकिन उसमें था एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है जिसमें 1, 2, 3 कार्बन एटम्स हैं, एंड दीज first and second carbon atoms are attached with long chain fatty acids which may be saturated and unsaturated but with the ester linkage. ये स्पेशल टाइप ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं जिसमें एस्टर लिंकेज की बजाय ईथर लिंकेज है. सो वी विल डिस्कस ब्रीफली कि हम इसकी केमिस्ट्री को ब्रीफली डिस्कस करेंगे. पहले रिव्यू करेंगे ईथर और एस्टर लिंकेज में क्या फ़र्क है, एंड देन वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स. These are the ether lipids. They are types of glycerophospholipids in which one acyl chain is attached to glycerol in an ether linkage rather than the ester linkage. अब ester और ether में क्या फ़र्क है? We will see in the next few slides by reviewing the chemistry. Ether lipids with an unsaturated group, alkene or alkenyl at the first position of the glycerol are called plasmalogens. जिसके ऊपर ये ईथर लिंकेज है और फर्स्ट उसके ऊपर जो है वो अनसैचुरेटेड है यानी कि डबल बॉन्ड है, तो इसको हम अल्केनाइल ग्रुप और अल्कीन भी बोलते हैं. सो दिस इज द जिसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉमनली नोन एज प्लाज्मेलोजेंस. दिस इज द brief review. We can see here कि ether linkage क्या है और ester linkage क्या है. We can see that this is the ether linkage. अगर यहाँ पे ये COC, this is the ether linkage, and routine में हमने बोला था कि ester linkage होती है, कि ये वाली linkage routine में present होती है जहाँ पे ग्लिसरॉल, यहाँ अगर ग्लिसरॉल का कार्बन एटम नंबर 1 लगा हुआ है से, तो इसके साथ आगे ये एस्टर लिंकेज के साथ फैटी एसिड्स जो है ना वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड अटैच होंगे. अगर इसी तरह इस ईथर लिंकेज के साथ लॉन्ग चेन फैटी एसिड अटैच होंगे तो दीज आर कॉल्ड दिस पर्टिकुलर ईथर लिपिड्स. अब यहाँ पे दिस मे बी डबल बॉन्ड विच इज़ अनसैचुरेशन भी हो सकती है और सैचुरेशन भी हो सकती है. ये दोनों टाइप्स की वी विल डिस्कस इन दिस मॉड्यूल. दिस इज़ अगेन दी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि हमने बोला था कि यही ग्रुप अगर यहाँ ये ईथर लिंकेज है तो इसमें सिंगल बॉन्ड है तो दिस इज़ नोन एज अल्केन. अगर यहाँ डबल बॉन्ड है और अनसैचुरेशन इसको हम बोलते हैं तो इट इज़ नोन एज अल्कीन. और यहाँ अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दिस इज़ नोन एज अल्काइन. So this is the different types. We will discuss we will say that this is the alkene, alkyne and alkynes. So इस मॉड्यूल में we will only stick to the alkane and alkenes. So this is the हमने कहा था पिछली स्लाइड शुरू में मॉड्यूल के कि अगर फर्स्ट ये ग्लिसरॉल के 3 कार्बन एटम्स हैं 1, 2 and 3. अगर इसके ऊपर यहाँ पे ये this is the ether linkage and this is alkene. Why this is alkene? Because there is unsaturation, double bond hai, which means double bond is, we can see that it is an unsaturated area between these two carbon atoms. So this is the ether linked alkene, and this we can see here that this is the normal ester linkage which is present in the other phospholipids or the glycerophospholipids. And this is, we can see here this is the phosphate and this is the choline. So this is these lipids with the particular having the particular ether linkage are called plasmalogen, and we can see here that this is, again we can repeat that this is unsaturation is present in these two carbon atoms, which is denoted as the double bond. In some instances, serine or inositol may be substituted for ethanolamine or choline. कि जहाँ नीचे प्लाज्मिलोजन में कोलिन थर्ड कार्बन एटम पे लगी हुई है फॉस्फेट के साथ, वहाँ पे सीरीन आ जाएगी, इनोस्टोल आ जाएगी और इथेनॉल अमीन भी आ सकती है. दीज कंपाउंड्स कॉन्स्टिट्यूट एज मच एज
10% of the phospholipids of brain and muscles. Vertebral heart tissues is uniquely enriched in ether lipids. अब in ether lipids का exactly क्या function है, it is not exactly known. About half of the heart phospholipids are plasmalogens. The membranes of halophilic bacteria, अब halophilic and ciliated protist जो है protist and certain invertebrates also high proportions of ether phospholipids. अब ये हेलोफिल्स as we know are the salt loving, ये उस तरह वो बैक्टीरिया हैं जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन में भी जो है वो ग्रो करते हैं. सो इसकी मेम्ब्रेन्स जो हैं इसके अंदर जो phospholipids हैं these are ether lipids instead of ester lipids. The functional significance of ether lipids in these membranes is not fully understood. Perhaps their resistance to the phospholipases that cleave the ester-linked fatty acids from membrane lipid is important in some roles. कि ये जो रूटीन में हमने कहा है कि एस्टर लिंकेज जो है होती है, एस्टर लिंकेज जो है फॉस्फोलाइपेजेस जो है वो डिग्रेड कर देते हैं. तो यहाँ पे अगर हमें रेजिस्टेंस चाहिए तो वहाँ ईस्टर फॉस्फोलाइपेजेस से तो वहाँ ईस्ट की बजाय ईथर लिंकेज होगी और दीज आर दी ether lipids which are present. So we have discussed the plasmalogens, and the other type of ether lipids is the platelet activating factor. Platelets we know के छोटे छोटे जो है ना वो ब्लड में खुलियात होते हैं जो क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं. जब भी कहीं पे कट लगता है या ब्लीड होता है तो वो उसको प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेट होके वो आपस में जुड़ जाते हैं और वहाँ क्लॉट फॉर्मेशन कर देते हैं. सो दी प्लेटलेट जो जब इस इनको कोई स्टिमुलस मिलता है तो एक्टिवेट होते हैं. तो these platelet activating factors are also these type of ether lipids. This is an unusual ether glycerophospholipids with a saturated alkyl group. पिछले में हमने कहा था unsaturated है, लेकिन इस फॉर्म में saturated alkyl group in an ether link to carbon atom number 1 and an acetyl residue rather than the fatty acid. तो सेकंड उसके ऊपर है वो एसिटिक एसिड या एसिटाइल रेजिड्यू है, कार्बन एटम नंबर 2 ऑफ द ग्लिसरोल बैकबोन. सो डिफरेंस प्लाज्मेलोजन और इसमें क्या है कि उसमें दोनों में फर्स्ट कार्बन पे ईथर लिंकेज है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे सैचुरेशन है, वहाँ पे अनसैचुरेटेड है कि वहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा. इसी तरह जो है सेकंड पे जो है ना फैटी एसिड की बजाय जो यहाँ पे एसिटाइल रेजिड्यू लगा हुआ है. दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और वी कैन सी हियर कि यहाँ पे ईथर लिंकेज है कार्बन एटम नंबर 1 पे और सेकंड पे एसिटाइल एस्टर लगा हुआ है. और वी कैन सी दैट देयर इज नो डबल बॉन्ड विच मीन्स दैट दीज आर सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप्स. पीछे हमने डिफाइन किया है कि अल्काइल और अल्कीन में क्या फ़र्क है. और यहाँ पे एज यूजुअल थर्ड कार्बन पे phosphate or choline जो है these are attached here. Platelet activating factor is synthesized and released by variety of cells types. It binds to surface receptors triggering potent thrombotic and acute inflammatory response or events. जब भी कहीं इंजरी आती है तो डिफरेंट जो है ना न्यूट्रोफिल्स और डिफरेंट सेल्स जो है वैरायटी ऑफ सेल्स जो है इस पर्टिकुलर जो है ना प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स को जो रिलीज कर देते हैं और ये जो ट्रिगर कर देते हैं एक पर्टिकुलर रिस्पांस को जो पोटेंट एक्यूट इन्फ्लेमेटरी एंड दी थ्रोम्बोटिक इवेंट के ये उसको थ्रोम्बोस बना के वहाँ पे उसकी एग्रीगेट होके जुड़ जाते हैं और उस जगह को सील कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग फर्दर ना हो. इट कॉजेज प्लेटलेट्स टू एग्रीगेट एंड डीग्रेनुलेट. जब ये डीग्रेनुलेट हो गए विच इज़ रिक्वायरमेंट फॉर दी क्लॉटिंग and neutrophils and alveolar macrophages to generate superoxide radicals required for microbial killing. दो अदर इसका फंक्शन है वो ये फर्स्ट तो हमने कहा कि एग्रीगेट हो जाते हैं, रिलीज होते हैं इसमें से प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, वो उसको डीग्रेनुलेट कर देंगे, उसके ग्रैनुल्स निकल जाएंगे और वापस में जुड़ जाएंगे. सेकेंडली ये जो है मैक्रोफेजेस को न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं जो जनरेट करते हैं superoxide radicals which are required for the killing of the external bacteria or the microbial agents.